Hi, people. My name is Nitin. I'm a third year medical student at Dr. RKGMC Hamirpur, Himachal Pradesh, in India. So today I was very bored. I wasn't studying and I didn't want to study. So I thought maybe I should record a video or something like that. In a productive way, maybe teach something, not really teach something, but what I learned, I won't. I'm sorry, don't know what to say. So yeah, today I have come in front of you to tell you people about the treatment of acute congestive heart failure and chronic congestive heart failure, ACH. Yeah, ACH. So starting with the acute congestive heart failure. So what happens is, uh, in the patients of acute congestive heart failure, they can present with mainly two things. या तो it can be pulmonary edema, acute pulmonary edema, or it can be cardiogenic shock. By the way, I'm not seeing on the book. I just read it once, and this is here. You can see it. This is this is about this. Whenever I see it, I see downwards, and you can know that I'm seeing it and I'm cheating. So, starting with, yeah, so patients of acute congestive heart failure can present mainly with two things: acute pulmonary edema and or cardiogenic shock. So, if the person presents with acute pulmonary edema, what are you going to do? So first, how can you know that he's presenting with the he present? How can you know that basically he has pulmonary edema? So what happens is, uh, he'll have breathing difficulty, which is dyspnea. Also, he'll have bilateral crepitation, bilateral creps, bubble sounds like tuck 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 like that. Bubble की sound होगी. Also, pink frothy sputum. उसका जो खांसी आ रही होगी, sputum आ रहा होगा, that will be pink frothy sputum. So that's the 3 points in acute pulmonary edema. तो acute pulmonary edema के मैनिफेस्टेशंस 3 पॉइंट्स क्या होंगे? एक तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी पल्मोनरी कंजेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या था, व्हाट वाज इट, पल्मोनरी बायलेटरल क्रेप्स आएंगे, टक 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 आवाज़, एंड ऑल्सो उसका पिंक फ्रॉथी स्पूटम होगा. सो दैट इज this, and these are the manifestations in pulmonary edema. So yes, so now treatment of pulmonary edema, isme we have a trick, basically not mnemonic, trick. Yeah, so the trick is LMNOPQ. So I have this notepad, like this. So this, what I'm gonna do is right in front of you. So what I have to learn, this fucking pen is not working, this doesn't work. मैंने स्कूल से लिया था भाई, किसी का भी गिरा हुआ था, एंड आई थॉट मे बी इट्स गुड. सॉरी, चोरी नहीं करनी चाहिए. सो अक्यूट पल्मोनरी एडीमा में ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इफ द पर्सन प्रेजेंट विद, वी हैव अ ट्रिक फॉर दिस. LMNOP. दिस इज द ट्रिक. LMNOP. यू माइट सी, हाँ आपको इन्वर्टेड दिख रहा होगा, बट you should manage, you are smart people. I'll say Lasix means diuretics. Furosemide, torsemide, ये सबसे commonly used हैं. These are the most commonly used. This is diuretics. Diuretics are used to clear off the pulmonary edema, excess fluid जो भी है वहाँ पे. So that is Lasix. Number 1 done. LMNOP. M से आता है morphine, yeah, it was morphine. Yes, it is morphine. M से आ गया morphine. So why morphine is used? It's a painkiller basically, but it is not used as its purpose is not pain killing. The purpose is basically to clean the pulmonary edema. It has the same function. What it does is it clears the pulmonary edema by shunting of the blood from pulmonaries
टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। या जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसको, जो ब्लड है उसको पल्मोनरी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में शंट कर देता है बेसिकली मॉर्फिन। दिस इज इट्स फीचर, यू नो। अगर आपने फार्मा में फीचर पढ़ा होगा इसका तो यू विल रिमेंबर। आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ what is the more mechanism of action in acute pulmonary edema, but you should search it up on ChatGPT or something. They'll tell you. So that we are done with morphine now. Morphine हो गया, morphine हो गया, L6 which is diuretics हो गया, M से morphine हो गया, N से था नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली वेसोडाइलेटर, आपके हार्ट पे लोड कम करेगा, यस प्री लोड कम कर देगा। दैट दिस इज वेसोडाइलेटर। ओके, सो एन से नाइट्रेट्स हो गया, और इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट्स यू कैन ऑल्सो यूज व्हाट, नेसेरिटाइड। नेसेरिटाइड इसका फंक्शन, नेसेरिटाइड का फंक्शन होता है नेट्रीयूरेसिस। सोडियम प्लस वाटर आपका एक्सक्रीशन कराता है, तो बेसिकली या फ्लूइड को कम करेगा। और you have another role in the N section only, nitroprusside. It has the same function as the nitrous group of things, no? nitroprusside हो गया। O से ऑक्सीजन, O2 देंगे, ठीक है, डन, वी डन विद ऑक्सीजन। एंड O2 कैसे देंगे, नॉन NIV, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देंगे। सो दैट इज हाउ वी गिव O2। एंड इसकी दो इंडिकेशंस यहाँ पे रिटन इन माय नोट्स, हाँ, acute pulmonary edema and acute exacerbation of chronic bronchitis. So these are the two, you know, indications of oxygen therapy. ये हो गया O से, and then we are left with P. So last we're left with P. P से क्या देंगे, पोजिशनिंग, बॉडी की पोजिशनिंग। बॉडी की पोजिशनिंग कैसे कर रखेंगे, बेसिक हमें जो पोजिशन रखनी है बॉडी की, यू नो व्हाट, बॉडी टेढ़ी रहनी चाहिए। जो ब्लड है वो नीचे भी रह, आपका हेड ऊपर होना चाहिए, आपका हार्ट शुड बी एलिवेटेड ऑन अ हायर लेवल देन योर लेग्स, ताकि जो आपका ब्लड है वो नीचे ही रहे, ऊपर ना आए। जस्ट लाइक दिस इज अ गाय का हेड, this is his body, this is his legs, something like this. This is the bed. You're seeing, right? टेढ़ा लेटा हुआ, इसका दिल यहाँ पे, इसकी टांग यहाँ पे। This should be the positioning. Head higher than the feet, तो decrease venous return to the heart. Obviously, that will help the guy. Newer drugs, we have also serelaxin and ularitide. ये भी है कुछ, I don't know what is this. This is just for me, not for you guys. So this is the treatment of acute pulmonary edema. So next we're talking is, what we are talking is cardiogenic shock की treatment. So cardiogenic shock की treatment में क्या करेंगे, there is not much in it, पर सबसे पहले तो पता कैसे चलाएंगे कि cardiogenic shock है। तो इसमें we have three things. You can see, you have three things. BP, ये तो आपका BP बहुत ही कम हो गया, हार्ट काम करना ही बंद कर दिया, हार्ट ने शॉक आ गया, कोई नहीं ब्लड फ्लो चला गया, बीपी कम हो गया। बीपी कम हो गया तो फिर हार्ट पंप ही नहीं करेगा ब्लड, तो दैट्स हाउ कैन नो। ऑल्सो यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाएगी आपकी, ओलिगोरिया, एन्यूरिया, वट एवर इट दिस, वैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। देन पल्मोनरी कंजेशन, these three are the findings of cardiogenic shock, the manifestations of cardiogenic shock, but which are क्या है, बीपी कम हो जाएगा, ओलिगोरिया होगा, मतलब यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, एंड पल्मोनरी कंजेशन भी होगा। शुड वेयर माय स्पेक्स, नो, या तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट इट्स इजी, divided into A and B. A and B. So basically in the A group it is inodrops, in the B it is IABP, intra-aortic balloon pump. Yeah, intra balloon pump, counter pulsation pump. So let's start with the
A section, which is inotropes. So inotropes नाम से पता चल रहा है I know मतलब heart की contractility. So they'll increase the contractility of heart, force of contraction of the heart को increase करेंगे. So what are the drugs? सबसे तो dobutamine आता है, which is beta 1 agonist. तो heart rate बढ़ाएगा, तो force of contraction बढ़ाएगा, ज़्यादा ब्लड मतलब पंप कर पाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी. बट द थिंग इज़ कि जैसे हार्ट रेट बढ़ाएगा तो हार्ट की जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो भी तो बढ़ेगी. बट दैट कैन हैपन राइट, क्योंकि हार्ट इज इन द फेलियर स्टेट, अबाउट टू फेल. तो इतना सब यू कैन नॉट अफोर्ड ना, द हार्ट कैन नॉट अफोर्ड दिस मच. सो what we have is another drug which is known as milrinone. ये आइनोडाइलेटर है. आइनोडाइलेटर मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, जिसकी वजह से टैकी से ब्लड अच्छा जाएगा बाहर, मतलब आउटफ्लो इज गुड. प्लस इट इज़ डायलेटर, वेजो डायलेशन करा देगा. तो जो आपका हार्ट की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, वेजो डायलेशन कराएगा बेसिकली, प्रीलोड कम कर देगा. यस, दिस इज़ व्हाट हैपेंस. प्रीलोड कम करेगा वहाँ, दिल में ब्लड कम आएगा, प्रीलोड कम करेगा. या दिस इज इट. या सो दिस वाज दो ड्रग्स करे हमने, डोपामिन, मिलरिनोन. वी हैव अनदर आइनोट्रोपिक ड्रग विच इज़ लेवोसिमेंडान. लेवोसिमेंडान के 2 मोड ऑफ एक्शन है. एक तो कैल्शियम सेंसिटाइजेशन करा देगा, मीन्स जो कैल्शियम होंगी ऑलरेडी, जो कैल्शियम प्रेजेंट है वहाँ पे, उसी कैल्शियम की जो रिसेप्टर्स हैं उस पर एक्शन, उनका रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज कर देगा, कैल्शियम सेंसिटाइजर. एंड ऑल्सो इट अफेक्ट द पोटेंशियल लेवल ऑफ द ब्लड वेसल, वेसोडाइलेशन कराता है, वेसोडाइलेशन कराएगा, ये भी वेसोडाइलेशन कराएगा. अनदर थिंग इज मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट, IABP, इंट्रालोटिक बलून पंप, काउंटर पल्सेशन पंप. ये कुछ नहीं करेगा. जब हार्ट नॉर्मली डायस्टोल में जाएगा उस टाइम ये जो पंप होगा ये फूल जाएगा. तो ये क्या करेगा कि इन्फ्लेट कर देगा हार्ट को, जिसकी वजह से तो कोरोनरी ब्लड फ्लो है हार्ट का वो बढ़ जाएगा. बेसिकली हो क्यों रहा है कि जो कार्डियोजेनिक शोक है हो क्यों रहा है, क्योंकि जो आपका कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो कम हो गया है. तो उसको अच्छा करने के लिए जो हमारा डायस्टोल में होता है, नॉर्मली डायस्टोल में ही फिलिंग होती है ना इसकी, जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है तो डायस्टोल के दौरान ही आता है, क्योंकि हार्ट रिलैक्स करेगा तो ब्लड वेसल उसकी मतलब दे कैन सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट. तो इन द डायस्टोल फेज ही हमने इसको वो कराना है ताकि जो कोरोनरी का ब्लड फ्लो हो वो बेटर हो. तो जिसकी वजह से दिस इज़ ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन दिस. So this we are done with the acute congestive heart failure. Now coming to the chronic congestive heart failure. Chronic में condition क्या हो सकती है? HFrEF, HFpEF. Heart failure with reduced ejection fraction and heart failure with preserved ejection fraction. So what happens is, करेंगे क्या? तो सबसे पहले की बात करते हैं रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की. तो द कॉज उसके हाइपरटेंशन हो गया और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, वॉल्व लीजन्स एंड कार्डियोमायोपैथी. दीज आर द मेन रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द HFrEF. ठीक है. सो इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो देखो, क्रोनिक हार्ट फेलियर के जितने भी केसेस होते हैं उनमें वी गिव ACE इनहिबिटर्स, और अगर मेल किसी रीज़न से ACE इनहिबिटर्स दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, देन वी गिव ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंड दे कंट्रोल मैक्सिमम रिडक्शन इन मोर्टेलिटी. ठीक है. ACE इनहिबिटर्स A+B होता है ना, A से ACE इनहिबिटर, B से बीटा ब्लॉकर. वी ऑल्सो गिव बीटा ब्लॉकर, कार्बेडिलॉल. These also have mortality benefits. Also, we give aldosterone antagonist, spironolactone. ठीक है.
Also we have ARNI, angiotensin receptor neprilysin inhibitor. इसमें अगर एस इनहिबिटर्स नहीं दे सकते तो ये देते हैं. उसमें कर होता क्या है कि वी इसमें देते हैं हम वैलसार्टन प्लस सैक्यूबिटल. जो वैलसार्टन है इट ब्लॉक्स एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन ऐसे याद करो कि एंजियोटेंसिन 2 आपका ब्लॉक कर दिया इसने. सो वैसे कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाएगी, तो मतलब बीपी कम हो जाएगा, विच इज गुड, है ना. अब आता है सेक्यूबिटल. सो सेक्यूबिटल क्या करता है? सेक्यूबिटल इज नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर. नेप्रिलाइसिन क्या करता है? इट इज एंजाइम, मे बी बीएनपी का रिलेटेड रिलेशन है इससे. बीएनपी को, अच्छा, जो नेप्रिलाइसिन सेक्यूबिटल है इट इनहिबिट्स द ब्रेक डाउन ऑफ बीएनपी. और जो बीएनपी का काम है वो नेट्रीयूरेसिस कराना है. तो हुआ क्या कि बीएनपी टूटना बंद कर दिया. सेक्यूबिटल क्या कर रहा है? बीएनपी का टूटना. तो नेप्रिलाइसिन बीएनपी को तोड़ता है. नेप्रिलाइसिन बीएनपी को तोड़ता है. नेप्रिलाइसिन बीएनपी को तोड़ता है और ये नेप्रिलाइसिन का इनहिबिटर है. तो मतलब नेप्रिलाइसिन नहीं है, बीएनपी नहीं टूटेगा. बीएनपी नहीं टूटेगा, नेट्रीयूरेसिस होगी, क्योंकि बीएनपी का फंक्शन है नेट्रीयूरेसिस कराना. तो दिस इज हो गया. यस. एंड देन वी डू व्हाट? I'm doing it for myself only. You guys are seeing me, and fuck off, you guys. अदर ड्रग्स आर SGLT2 इनहिबिटर्स. ये क्या करते हैं? ये ग्लूकोज तो कराते ही हैं, डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं, बट ऑल्सो दे डू द सोडियम का एक्सक्रीशन वाला पार्ट. सो या दे आर गुड, कैन यूज़ दैट. ऑल्सो नंबर 6 इज वेरिसिगुआट, increase CGMP. So vasodilation causes decreased preload on heart. Omecamtiv cardin myosin inhibitor. And हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व रिजेक्शन फ्रैक्शन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इज इसमें 50% से ज़्यादा इजेक्शन फ्रैक्शन होता है. इसके कॉजेज होते हैं रेडिएशन, एजिंग, कैल्सीफाई वगैरह हो जाएगा. हाइपरटेंशन भी था. हाइपरटेंशन, रेडिएशन, एजिंग, डायलेटेड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एंडोकार्डियल फाइब्रोलास्टोसिस. और इसमें क्या होता है कि इसमें जो एसी इनहिबिटर्स या आरबीज वगैरह हैं, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दे आर इनफेक्टिव, बेसिकली दे आर नॉट गिवन. एंड तो इसमें देते क्या? इसमें अर्नी देते हैं, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, मे बी बेनिफिशियल. स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं, मे बी बेनिफिशियल. SG2 इनहिबिटर्स दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन. रास थेरेपी, डायरेक्ट थेरेपी देते हैं. एस आर बी इन्फेक्टिव. डिजॉक्सिन देते हैं, मे बी यस. एंड इनफेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स आर इनफेक्टिव. एंड फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर, सिल्डेनाफिल इज आल्सो इनफेक्टिव. मोडालिटी बेनिफिट. प्लेसिबो, इसमें ये जो डायग्राम था ना उसमें ये है कि सबसे ऊपर प्लेसिबो है, देन एसी इनहिबिटर्स हैं, ARBs हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, अर्नी हैं, SGLT2 हैं. वी हैव टू रिमेंबर दिस वन. लास्ट में जाके हैं ओरल आइनोट्रोप्स. मैकेनिकल रिफ्रैक्टरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. रिफ्रैक्टरी मतलब हमने सब कर लिया, स्टिल द हार्ट फेलियर हैजंट कंपनसेटेड. हम उसको ठीक नहीं कर पाए हैं. सो what we do then, हम क्या कर सकते हैं? we have LVAD, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, है ना. यस. तो we have LVAD. तो उसको द सेम यू सॉ इन द ग्रेज एनाटमी, राइट. तो हम LVAD का तरह के लेफ्ट वेंट्रिकल को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, दैट थिंग. एंड ऑल्सो वी हैड सम सिंक्रोनाइजर में भी, CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में. इसमें क्या होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कि दो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स डू नॉट पम्प टुगेदर. सो फॉर बीइंग इफेक्टिव दे हैव टू पम्प टुगेदर, बट they cannot in the dilated cardiomyopathy. So we use CRT, cardiac resynchronization device. The last thing is हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है अगर कुछ नहीं कर पाया. हार्ट का बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गया, हार्ट के फंक्शनिंग है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, तो वी हैव टू डू अ कार्डियक ट्रांसप्लांट. यस.
लास्ट में आता है NYHA, न्यू यॉर्क हेल्थ एसोसिएशन. I don't think so we need to discuss that. So that's all for today. Bye bye.